how you should rise up in life, अपने जीवन में कैसे आपको उत्थित होना है, and how you should have joy all through your life. आपके जीवन में किस तरह से आपको आनंद पाना है, Your life, आपके जीवन और किनारे में पहुंच जाएगा। as you call to him even before these exams. और इम्तिहान के पहले जब आप उनको पुकारते हैं, Would you call him now क्या अभी आप उनको पुकारेंगे? as we sing this chorus? जब ये गीत हम गाते हैं, Open your heart अपना दिल को खोलें and tell him, Lord, come into my heart. और कहे, हे प्रभु मेरे दिल में उतार आए। Jesus, I can't face these exams all alone. I need you, Lord. प्रभु यीशु, ये इम्तिहान में अकेले सामना नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता है। Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Evangeline Auntie will lead us. इवेंजेलिन आंटी आपको प्रार्थना में अगुवाई Even करेंगे। as she leads us, cry to God, cry to Jesus and tell him, come into my heart, Lord. जब वो आपकी अगुवाई करते हैं, आप परमेश्वर की ओर निहारे, प्रभु यीशु को पुकारे और कहे, हे प्रभु आप मेरा दिल में उतार आए। Loving Lord Jesus, help your children to receive you even now, Lord. हे प्रभु अपने बच्चों को आप मदद करें ताकि अभी आपको ग्रहण कर लें। Lord, give them a sincere heart to invite you into their heart, Lord. उन्हें एक ईमानदार दिल दे ताकि आपको अपने दिल में आमंत्रित कर सकें। Father, let a new thing happen in their lives. हे पिता उनके जीवन में नई बात हो जाए। As you are entering into them even now, Father, I know you are going to bless them in a new way. हे पिता जब आप अभी उनके दिल में प्रवेश कर रहे हैं, मुझे पता है नया तरीका से आप उनको आशीष देने वाले हैं। Lord, I know they are so anxious for their examinations. हे प्रभु मुझे पता है अपने इम्तिहान के लिए बहुत चिंतित होंगे। Lord, help them, Lord. प्रभु आप उनकी मदद करें। Help them, Lord, प्रभु आप उनकी मदद करें as they are sincerely and faithfully inviting you to come into their hearts. जब बड़ा निष्ठा से, बड़ा ईमानदारी से अपने दिल में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। Lord, be seated in their heart as a heavenly Father. हे पिता स्वर्गीय पिता के रूप में आप उनके दिल में विराजें। Lord, Father, help them, and Lord, fill them with your wisdom, Master. हे प्रभु उनकी आप मदद करें, अपने बुद्धि से आप उनको भर डालें। Lord, you are the source of all wisdom. हे प्रभु सारे बुद्धि का आप ही खजाना हैं। In you are hid all wisdom, all treasures of wisdom and knowledge. हे प्रभु सारा बुद्धि और ज्ञान का खजाना आप में छुपी हुई है। Father, give your children the presence of mind to present everything beautifully on their papers. हे प्रभु उस वक्त का बुद्धि उनको दे ताकि सारे पेपर में सही तरीका से वो लिख सकें। Lord, Father, in the examination hall, appear before them and help them to write everything beautifully, Lord. हे प्रभु इम्तिहान के कक्ष में आप उनके सामने प्रकट हो जाए और सारी बात बड़ा खूबसूरत तरीका से लिखने में आप उनकी मदद करें। Take away all the tensions and all the fear, Lord. उनके मन से सारा तनाव, सारा डर को आप दूर करें। Lord, give them the confidence to present everything beautifully. हे प्रभु उनको हियाव दे ताकि सारी बातों को बड़ा खूबसूरती से वो पेश कर सकें। Let your blessed hand come upon your children even now. प्रभु अभी आपके आशीषित हाथ आपके बच्चे के ऊपर उतार आए। Go before them to their examination hall पिता उनके इम्तिहान के कक्ष में आप उनके आगे आगे जाएं and help them to score very high marks, Lord. और बहुत ऊंचा अंक प्राप्त करने में आप उनकी मदद करें। Take away all their weaknesses, उनके सारी कमजोरियों को आप भर लें, all the sicknesses, हर एक बीमारियों को, all the tensions, Lord. हर एक तनाव को दूर कर दें No more anxiousness, Lord.
और मन में कोई चिंता ना रहे। Help them to come out in flying colors. होने दे कि बड़ा ऊंचा मकाम वो हासिल कर सकें। Thank you for blessing each and every child who is watching this program. धन्यवाद प्रभु, सारे बच्चे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सबको आप आशीष दे रहे हैं। Embrace them and kiss them, Lord. पिता गले से लग जाए, उनको चूम लें आप। Lord, Father, help them to feel your presence. पिता आप उनकी मदद करें ताकि आपकी हुजूरी की वो अनुभव कर सकें। Let your blessed hand come upon them even now as they are listening to this program. प्रभु जिस कार्यक्रम को अभी वो देख रहे हैं, आपके आशीषित हाथ अभी उनके ऊपर उतार आए। You be their very present help, Lord. हे प्रभु आप उनके बहुत सहायक मददगार बन जाएं। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमेन। My darling child, मेरे प्यारे बच्चों, now Jesus has come into your heart. अभी यीशु आपके दिल में उतर आए हैं। So all the time, you must be confident and talk to him from now on. अब इसे हमेशा आप हियाव बांध ले, उनके साथ बातें करते रहें। As you talk to your friend, जैसे अपने मित्र के साथ आप बात करते हैं, as you text your friend, जैसे मित्रों को आप टेक्स्ट करते हैं, speak to Jesus आप यीशु के साथ बात करें। and say, My Lord, you are in me. आप कहें, हे प्रभु आप मेरे अंदर हैं, You're watching me. आप मुझे देख रहे हैं। Give me the grace to leave everything that is distracting me from my studies. हे प्रभु मुझे इतना कृपा दे ताकि सारे बातों को, सारे बाधाओं को मैं छोड़ दूं जो हमारे पढ़ाई को बाधित कर रहा है। I must not look at the texts or the videos. मैं टेक्स्ट और वीडियो को ना देखूं, I must not spend time in games. मैं खेल कूद के साथ समय ना बिताऊं। Give me the grace to focus and study. मुझे इतना कृपा दे ताकि पढ़ाई में हम मन लगा सकें। Ask him उनसे मांगे, and then talk to him उनके साथ बात करें। and say, Thank you, Lord, you're with me. आप कहें, धन्यवाद प्रभु आप मेरे साथ हैं, You will help me. आप मेरा मदद करेंगे। Keep on talking to Jesus and tell him whatever you want. आप जो भी चाहते हैं लगातार आप उनसे बात करते रहें। From now on, he is your only friend. अब इसे केवल मात्र वही आपके मित्र हैं। And Jesus alone can lift you up to great heights. केवल यीशु ही आपको महान ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। You may have been a failure until now, but from now on, Jesus, the great victor, will give you also victory and lift you up. शायद अभी तक आप जीवन में विफल रह चुके हैं, लेकिन यीशु जो महान विजेता अभी से आपको महान विजय देने वाले हैं। Yes, you're going to be more than a conqueror from today. जी हाँ, आज से आप जयवंत से भी बढ़कर बन जाएंगे। All right, when Jesus comes into you, जी हाँ, जब यीशु आपके अंदर प्रवेश करते हैं, his wisdom also comes into you. उनका बुद्धि भी आपके पास आता है। Yes, the scripture says, in him, in Jesus, are hid treasures of wisdom and knowledge. यहाँ शास्त्र कहता है उनमें, यीशु में ज्ञान और बुद्धि की खजाना छुपी हुई है। Today, if we talk about treasures, we think of gold, we think of silver, we think of many coins and so on. जब हम आज खजाने की बात करते हैं, हम सोना, चांदी, कई तरह का सिक्के की बात करते हैं। But wisdom is the greatest treasure. लेकिन बुद्धि सबसे बड़ा खजाना है। When you have wisdom, you will have favor of everybody. Everybody will honor you. जब आपके पास बुद्धि होगा, आपको सबकी नजरों में कृपा मिल जाएगा, सब आपको आदर देंगे। When you have wisdom, money will flow and fall at your feet. जब आपके पास बुद्धि होगा, पैसा आपके पास आपके चरणों में गिरने वाला है। When you have wisdom, you'll have glorious relationship with everybody. जब आपके पास बुद्धि होगा, सबके साथ आपका बड़ा महिमान्वित रिश्ता हो जाएगा। When you have wisdom, you will know what is right, what is wrong, and your path will be so righteous. जब आपके पास बुद्धि होगा, आपको पता रहेगा क्या गलत है, क्या सही है, आपका रास्ता बड़ा धर्मी हो जाएगा। And no devil, no evil can touch you. कोई दुष्ट, कोई बुराई आपको स्पर्श नहीं करेगा। That's why you have to pray for wisdom. इसीलिए आपको बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। So even today, tell Jesus, in you are hid treasures of wisdom, Lord. आज आप यीशु को कहे, हे यीशु, आप में जो है बुद्धि का खजाना छुपी हुई है, Treasures of knowledge. ज्ञान का खजाना छुपी हुई है। So give me from those treasures. आप उस खजाना से मुझे दें। Yes, wisdom is to understand everything, जी हाँ, बुद्धि सारे बात समझने के लिए है, and knowledge is to have the power,
the understanding to solve problems. और ज्ञान जो है आपके पास सामर्थ आपको देगा और सारे परेशानियों को समाधान करने के लिए शक्ति देगा। So you'll have both तो आपके पास दोनों आ जाएगा when Jesus comes in today. जब यीशु आपके पास आ जाते हैं And you have to ask him for wisdom. और आपको उनके पास बुद्धि के लिए मांग करनी है। He'll give you liberally. वो बहुतायत से आपको देंगे। You heard the wonderful testimonies. आपने बेहतरीन गवाहियों को सुना है। Yes, you too can do that. आप भी ऐसा कर सकते हैं। The Lord will help you. परमेश्वर आपको मदद करेंगे। It's not getting the full marks alone, but getting the marks that you need for you to enter in the profession or the field which God has planned for you. ऐसा ही नहीं कि परिपूर्ण मार्क्स आपको लाना है, लेकिन उतना मार्क्स आपको लाना है जिस कोर्स के लिए परमेश्वर आपको सुनियोजित किए हैं, उस कोर्स में जाने के लिए आपको सही मार्क्स मिलेगा। When Solomon, who was a young man, very, very young man, was made king, जब सुलेमान जब बहुत ही युवा था, जब उनको राजा बनाया गया, God appeared to him परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए, and asked him, उनसे पूछे, ask me whatever you want. मुझसे जो भी चाहते हो मांग लो। And Solomon said, Lord, I must have wisdom. सुलेमान ने कहा, हे प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, Wisdom to carry all the people. ताकि सारे लोगों को लेके जाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। God was so pleased. परमेश्वर बहुत ही खुश थे। He said, you didn't ask for wealth. उन्होंने कहा, तुमने जो है धन की मांग नहीं किया था, You didn't ask for long life. तुमने लंबी उम्र की मांग नहीं किया, You didn't ask for the victory over your enemies. आपने शत्रुओं के ऊपर विजय के लिए मांग नहीं किया, You have chosen the good part. तुमने सही भाग को चुन लिया है। Wisdom which brings everything in the world. बुद्धि जगत की सारी बातों को लाता है। And God gave him tremendous wisdom. परमेश्वर उनको बहुतायत की बुद्धि दिए, He could understand everything. वो सारी बातों को समझ सकते थे। There was a man called Daniel. दानिएल नाम का एक पुरुष थे, He had an understanding heart, उनके पास एक समझदार दिल था, discerning heart, समझने वाला दिल था, all knowledge. सारा ज्ञान था। That is the heart God is going to give you today. वही हृदय परमेश्वर आज आपको देने वाले हैं। You will have wisdom, आपको बुद्धि मिलेगी, knowledge, ज्ञान मिलेगा, understanding, समझ मिलेगा, discerning heart, समझने का शक्ति मिलेगा, and the power to solve all riddles and all problems. सारी पहेलियां और सारा परेशानियों को समाधान करने के लिए आपको सामर्थ्य मिलेगा। You need all these to get 100%. ये सारे बात आपको चाहिए 100% अंक लाने के लिए। And the Lord is giving you this grace. परमेश्वर ये अनुग्रह आपको दे रहे हैं। And it's all in ये Jesus. सारे बात यीशु में हैं। In Jesus are hid treasures of wisdom and knowledge. यीशु के अंदर ज्ञान और बुद्धि की खजाना छुपी हुई है। Today God is going to lift you up आज परमेश्वर आपको उत्थित करेंगे with this wisdom, इस तरह की बुद्धि से, with this इस knowledge. तरह का ज्ञान से। Yes, I would do this when I was studying. जब मैं पढ़ाई करता था, मैं इस तरह का काम करता था। I would lay my hands on the portion which I would have to study. जो हमको पढ़ाई करना उस भाग में अपना हाथ को मैं रखता था। And I would say, all this is wisdom, Lord. मैं कहता है प्रभु ये सारी बुद्धि की बातें हैं, So I need this in my heart. मुझे मेरे दिल में समझने के लिए इसकी जरूरत है। And this wisdom is none other than Jesus. ये बुद्धि यीशु के सिवा और कोई नहीं है। So I began to love my studies. तो आपने पढ़ाई से बड़ा प्रेम हो गया मुझे। Every time I would ask for the knowledge of what I had to study, I knew I was asking for Jesus, because every knowledge and every wisdom is in Jesus. जब तक मैं पढ़ाई के लिए ज्ञान मांगता था, मैं बड़ा खुश होता था क्योंकि सारा ज्ञान और बुद्धि यीशु में छुपी हुई है। And as I would pray, laying my hands on that chapter or that problem which I had to solve and pray, the presence of God would fill me. वो चैप्टर या प्रॉब्लम के ऊपर हाथ रख के मैं जब प्रार्थना करता था, परमेश्वर की हुजूरी मेरे दिल में उतार आती थी। And Jesus would come और यीशु आते थे, and he would reveal everything to me. वो सारी बात मेरे सामने प्रकाशित करते थे, Give me concentration, मुझे एकाग्रता देते थे, understanding, समझ देते थे, and I would not be frustrated. और मैं बिल्कुल उलझन में नहीं आता था। Before I gave my life to Jesus as a child of God, एक परमेश्वर के संतान होने के नाते प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंपने के पहले I was failing in my exams. अपने इम्तिहान में विफल हो रहा था, But after Jesus came into my heart, लेकिन जब यीशु मेरे दिल में उतार आए, because of the relationship I had with Jesus, I could understand everything that I had to study.
क्योंकि यीशु के साथ मेरा जो रिश्ता बन गया था, मैं जो भी पढ़ाई कर रहा था सबको मैं समझ पा रहा था, and cleared all the subjects. सारा सब्जेक्ट मैं क्लियर कर दिया। And by God's grace, I even got a gold medal for a subject during the convocation. और कन्वोकेशन के दरमियान परमेश्वर की अनुग्रह से मुझे स्वर्ण पदक मिला एक सब्जेक्ट में। So when you are studying, pray, and as you are receiving that knowledge, you are receiving the Lord Himself. जब आप पढ़ाई करते हैं, आप प्रार्थना करें, जब उस ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं, आप प्रभु यीशु को स्वयं प्रभु यीशु को प्राप्त कर रहे हैं। In Jesus are hid treasures of wisdom and knowledge. यीशु में ज्ञान और बुद्धि की खजाना छुपी हुई है। Right now, would you pray? Give me wisdom, Lord. क्या आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे आप बुद्धि दें, Give me knowledge. मुझे ज्ञान दें, Give me understanding. मुझे समझ दें, Give me a discerning heart. मुझे ऐसा एक दिल दे जो सारे बात को समझ सके। Give me the wisdom and the power to solve every problem. मुझे बुद्धि दे और सारा समस्याओं का हल निकालने के लिए मुझे सामर्थ्य दें, To tally all equations ताकि सारा इक्वेशन को मैं समाधान कर सकूं and also to balance the books. और सारे किताब को बैलेंस भी कर You're सकूं। a commerce student. आप कॉमर्स की छात्रा थी। So, how would you study when you were young? आप युवावस्था में किस तरह से पढ़ाई करती थी? I wished to come first in my school when I was studying. जब मैं पढ़ाई कर रही थी स्कूल में पहला आने का कोशिश कर रही So we थी, must desire that. तो मुझे इस बात की चाहत We रखना है। must not say, I can't do it. हमें ऐसा नहीं कहना है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, We must desire. हमें इसकी चाहत रखना Desire जरूरी for है wisdom. बुद्धि का। Just to glorify the name of the Lord, I said, Lord, help me to come first in my class. प्रभु यीशु का नाम को महिमा देने के लिए मैंने प्रार्थना किया, मेरा क्लास में प्रथम आने के लिए आप मेरी मदद करें। But then one day a prophetess of God came to my house and she laid her hand on me and she said these words. लेकिन एक दिन मेरे घर में एक नबिया आई और मेरे पर हाथ रख के इस तरह का बात कही। She said, Evangeline, you are trying very hard to come first in your class. उन्होंने कहा, इवेंजेलिन आप अपने क्लास में प्रथम आने के लिए बहुत संघर्ष कर रही हैं। One thing, एक काम करना है आपको, before studying, read the Bible and then pray to God. पढ़ाई करने के पहले बाइबल पढ़े और परमेश्वर से प्रार्थना करे। After that, take your books and study. उसके बाद अपना किताब लेके आप पढ़ाई करें। And I immediately obeyed her मैंने तुरंत उनका बात को मान लिया and I began to do the same every day. हर रोज मैं ऐसा ही काम करते चले। And I had the desire to come first only in my class. मुझे अपने कक्षा में प्रथम आने का चाहत था, But then God helped me to come first in the whole school. लेकिन परमेश्वर ने पूरे स्कूल में मुझे प्रथम आने के लिए मदद की And the school honored me with a silver medal. और स्कूल एक रजत पदक से मेरा सम्मानित किया। Dear friends, before learning your lessons, read the Bible and pray before you study. मेरे मित्रों, अपना पढ़ाई करने के पहले आप बाइबल पढ़े और प्रार्थना करें। When you do that, it's God who will give you the success. जब आप ऐसा करेंगे स्वयं परमेश्वर आपको सफलता देंगे। Jesus says, without me, you can do nothing. यीशु ने कहा, मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। The Bible also says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. बाइबल ऐसा भी कहती है, परमेश्वर का डर ज्ञान के आरंभ है। We may try to come first in the class by ourselves. हम अपने शक्ति से कक्षा में प्रथम आने की कोशिश कर सकते हैं। I tried to do that, मैं खुद कोशिश की थी, but then I failed in my class. लेकिन मैं अपने कक्षा में विफल हो गई थी। But then after I prayed and learned my lessons, the Lord gave me the success. लेकिन मैं उसके बाद प्रार्थना करने के बाद पढ़ाई करने लगी, स्वयं परमेश्वर ने मुझे सफलता दी है। Amen. Wonderful. बेहतरीन बात है। But when wisdom comes, लेकिन जब बुद्धि आती है, God gives you stature. परमेश्वर आपको डील डोल देते हैं। There was a young man called Joseph. यूसुफ नाम का एक युवा व्यक्ति था।